کینیڈا میں ٹرک ڈرائیور نے پاکستانی خاندان کو کچل دیا، 4 افراد جاں بحق۔ عمران خان کہتے ہیں کینیڈا کا واقعہ مغربی ممالک میں بڑھتے اسلامو فوبیا کی مثال ہے۔ مرنے والے بے گناہوں کا قصور یہ تھا کہ وہ مسلمان تھے۔ شاہ محمود قریشی کا واقعے پر رد عمل۔ جہانگیر ترین کو عدالت سے بڑا ریلیف مل گیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے ایف بی آر کو پی ٹی آئی رہنما کی شوگر ملز کا آڈٹ کرنے سے منع کر دیا۔ گھوٹ کی ٹرین حادثہ پٹری یا ٹریک کی ویلڈنگ ٹوٹنے سے پیش آیا۔ سینئر افسران کی ابتدائی رپورٹ وزیر ریلوے کو ارسال کر دی گئی۔ کرونا وبا کے باعث مزید 53 افراد جاں بحق ہو گئے۔ 1000 سے زائد نئے مریض رپورٹ۔ فال کیسز کی تعداد 46,190 ہو گئی۔ چینی گندم ادویات براڈ شیٹ اور رنگ روڈ منصوبے میں وزیر اور مشیر پیسے کھا گئے۔ عمران خان کا یہ کہنا بالکل درست ہے کہ جس ملک کا حکمران کرپٹ ہو وہ ملک تباہ ہو جاتا ہے۔ لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو۔ فلاح عامہ کے منصوبوں میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ترقیاتی منصوبوں کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کا حکم دے دیا۔ ڈویژنل انتظامیہ اور پی ایچ اے کے زیر انتظام ملتان میں شجرکاری جاری۔ چوک کمہارا والا پر درخت لگا دیے گئے۔ کمشنر جاوید اختر محمود کہتے ہیں کوشش ہے شہر کا درجہ حرارت کم ہو جائے۔ ڈی پی او لودھراں عبدالرؤف بابر کی سربراہی میں پولیس کی کارروائی۔ ملزمان سے اسلحہ اور منشیات برآمد، مقدمات درج کر لیے گئے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیلات جانتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو محفل، رونق انیویٹیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، کبھی ممی کا ہے دلہا، روز شمع کی ہو محفل، رونق انیویٹیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، یہی پیار بھی، تکرار بھی، یہی پیار بھی، یہی جیت بھی، یہی ہار بھی، تکرار بھی، یہی پیار بھی، یہی جیت بھی، یہی ہار بھی، روز شمع کی ہو محفل، رونق انیویٹیبل، بولی دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، کی زبان ہے شمع، ٹوائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی، بولے دل کی بولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماکس نیوز اور میں ہوں محمد حیدر رضا اور میں ہوں صبان قریشی۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ کینیڈا میں ٹرک ڈرائیور نے پاکستانی مسلم خاندان کو کچل دیا۔ حملے میں 4 افراد جاں بحق اور 1 بچہ زخمی ہو گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ باقاعدہ منصوبہ بندی سے مسلم فیملی کو ٹارگٹ کیا گیا۔ پولیس نے 20 سالہ حملہ آور کو گرفتار کر لیا ہے۔ دوسری جانب واقعے پر وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کینیڈا میں پاکستانی خاندان کا قتل مغربی ممالک میں بڑھتے ہوئے اسلامو فوبیا کی مثال ہے۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی برادری کے ذریعے اسلامو فوبیا کا مجموعی طور پر مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنا رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ کینیڈا میں قتل ہونے والے 5 پاکستانیوں کا گناہ مسلمان ہونا تھا۔ میرے نزدیک یہ دہشت گردی کا واقعہ ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے بیان میں کہا کہ پولیس کی تحقیقات کے مطابق واقعے میں اسلامو فوبیا کا عنصر موجود ہے۔
मिलने वाली लाशें काबिल शनाख्त नहीं, अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि वाक़ये पर कैनेडियन हाई कमीशन को दफ्तर खारजा में तलब किया है। कैनेडियन वज़ीर आज़म से कहूँगा कि ये उनके माशरे का इम्तिहान है। कनाडा में मुकीम मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें। लाहौर हाई कोर्ट ने एफबीआर को जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स JDW का ऑडिट करने से रोक दिया। जराये के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट में जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स JDW का ऑडिट करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने हुक्म इब्तना जारी करते हुए नोटिस पर अमल दरामद रोक दिया और एफबीआर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। JDW ने दरख्वास्त में एफबीआर समेत दीगर को फरीक बनाते हुए कहा कि एफबीआर ने 21 मई को ऑडिट करने का नोटिस भिजवाया और इनकम टैक्स से मुतालिक दस्तावेजात और रिकॉर्ड मांगा। एफबीआर को 5 बरस गुजरने के बाद ऑडिट करने का इख्तियार नहीं है। 2015 का टैक्स ऑडिट करने का कानूनी अरसा गुजर चुका, लिहाजा ऑडिट नोटिस गैर कानूनी तौर पर भेजा गया है, जिसे कालअदम करार दिया जाए, जिस पर अदालत ने हुक्म इब्तना जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। पाकिस्तान रेलवे के सीनियर अफसरान ने घोटकी के करीब रेती रेलवे स्टेशन पर 2 ट्रेनों के हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट्स मुकम्मल कर लीं। रेलवे ज़राए के मुताबिक परमानेंट वर्क्स इंस्पेक्टर व दीगर अमले ने अपनी अपनी रिपोर्ट मुरतब की। इंस्पेक्शन टीम अमले के एक रुकन का कहना है कि हादसा ट्रैक की वेल्डिंग टूटने की वजह से पेश आया, जबकि दूसरी इंस्पेक्शन टीम का कहना है कि हादसा रेलवे पटरी टूटने से हुआ। सीनियर अमले की रिपोर्ट्स वजीर रेलवे को भिजवा दी गई हैं। हतमी फैसले और बाकायदा इंक्वायरी के लिए रिपोर्ट रेलवे फेडरल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर को अरसाल कर दी गई। कोरोना वायरस से मजीद 53 अफराद जान की बाजी हार गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 1383 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। इस तरह पाकिस्तान में कोरोना के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 9 लाख से जायद हो गई है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक इस वक्त मुल्क भर में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 46,190 है, जबकि मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.94% पर आ गई है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वजीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि वजीर आज़म करप्ट तरीन वज़रा के झुरमट में पारसाई के दावेदार हैं। चीनी, गंदम, अद्वियात, ब्रॉडशीट और रिंग रोड में वजीर मशीर पैसे खा गए। अवाम हुक्मरानों को निशान इबरत बनाएंगे। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस्लामाबाद से एक और स्कैंडल सामने आएगा कि किस तरह हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल करके अरबों रुपए कमाए गए। चेयरमैन नैब थोड़ी तकलीफ फरमाएं और अदालतों में आकर देखें यहाँ क्या हो रहा है। वजीर आज़म का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने फरमाया जिस मुल्क में हुक्मरान करप्ट हो वो तबाह हो जाता है। आज विफाक और पंजाब में करप्ट तरीन हुकूमतें हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने तरक्याती प्रोग्राम के तहत फलाह-ए-आमा के मंसूबों को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा कि तरक्याती मंसूबे सूबे के अवाम की सहूलत के लिए शुरू किए हैं। इन सूबों की शफाफ और बरवक्त तकमील बेहद जरूरी है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। मंसूबों में कौमी वसाइल इस्तेमाल होते हैं। उस्मान बुज़दार ने तरक्याती मंसूबों के लिए जारी फंड्स का बरवक्त इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत करते हुए कहा कि अवाम के खून पसीने की कमाई के अमीन है, किसी को बेज़ाब्तगी नहीं करने देंगे। डिवीजनल इंतजामिया और PHA की मुल्तान को सरसब्ज बनाने के लिए बड़े पैमाने पर शजरकारी मुहिम जारी है। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद ने कुम्हारा वाला चौक पर जारी शजरकारी मुहिम में दरख्त लगाया। हमारे नुमाइंदे इमरान शहजाद के मुताबिक कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद ने इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि शदीद गर्मी में दरख्त का साया नेमत है। मौसम की सख्ती को कम करने के लिए हर शख्स को इस मुहिम का हिस्सा बनना होगा। भरपूर कोशिश की जा रही है कि डिवीजन का दर्जा हरारत 2 से 3 डिग्री कम कर सकें। चेयरमैन PHA इजाज जंजुआ ने कहा कि वजीर आज़म के विजन के मुताबिक शजरकारी मुहिम जारी रहेगी। गर्द गर्मा की धरती को सब्जे और रंगों की धरती बनाने के लिए कोशां हैं। कहरोड़ पक्का में DPO लोधरा अब्दुल रऊफ बाबर की सरबराही में जिला पुलिस की कार्रवाई करते हुए मुलजिमान से असला और मंशियात बरामद कर ली। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद तारिक के मुताबिक पुलिस ने 7 मुलजिमान से 1 राइफल, 1 कारबिन और 116 लीटर शराब और चालू भट्टी बरामद करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। इस हवाले से DPO अब्दुल रऊफ बाबर का कहना था कि जिला से जराइम पेशा अफराद का खात्मा हमारी अव्वलीन मिशन है। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट। अल्लाह निगहबान।
मचा दे धूम। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के ज़ेरे साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 03000 222 402